हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माऊजी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटोरियल हम लोग का सी के अंदर सेकेंड लेक्चर जो है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आइडेंटिफायर से। जो भी मेरा वीडियो नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर का, उसमें हम लोग ने क्या क्या किए थे, हम लोग ने सब सी के जो है बेसिक वो सब कवर किए थे। लाइक जैसा हम लोग के पास ये था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ पहले लेक्चर का सब। के अंदर इंट्रोडक्शन था पूरा, कहाँ सी यूज़ करते, कैसा यूज़ करते, किसने बनाया और वो सब। C language introduction. C is a procedural programming language. The main feature of C language include low level access to memory, a simple set of keywords and clean style. C invented to write operating system called Unix. C was the basic language to write everything from the operating system, Windows and many others to complex program like the Oracle database, JET, Python interpreter and more. About C programming क्या था? सबसे पहला procedural language है. Instruction in a C program are executed स्टेप बाय स्टेप है. सेकेंड क्या था? पोर्टेबल था. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक मूव कर सकते हैं विदाउट एनी मिनिमल चेंजेस. क्यों सीखते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग? सी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन. आफ्टर लर्निंग सी इट विल बी मच ईजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन. मतलब एक बेस है प्रोग्रामिंग का, अगर उसको हम लोग ने सीखे. C is a structured programming language in which program divided into various modules. Each module can be written separately and together it form a single C program. This structure make it easy for testing and maintaining and debugging process. C contains 32 keywords, various data types and set of powerful built-in function that makes the programming very efficient. Where is C used? Key application. C language is widely used in embedded system. It is used for developing system application. It is widely used for developing desktop application. It is used for compiler productions and it is widely used in IoT applications. IoT का क्या था जो हम लोग ने, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया. इससे क्या है, फिटनेस बैंडेज और मॉनिटर फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग के GPS tracking belts, ये सब these are nothing, only IoT application. How C works? C is a compiled language. A compiler is a special tool that compiles the program and convert it into the object file which is machine readable. After the completion process, the linker will combine the different object file and create a single executable file to run the program. The following diagram shows the execution of C program. Writing a source code, कंपाइलिंग सोर्स कोड और लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल. सबके यहाँ एक्सटेंशन क्या है? इसका फाइल नेम .c, इसका फाइल नेम .obg और .o, और इसका फाइल नेम क्या आता है? .exe. समरी में क्या था? C was developed by Dennis Ritchie 1972 में. It is a robust language. It is a low programming level language close to machine language. It is widely used in the software development field. It is a procedure and structure oriented language. It has the full support of various operating system and hardware platforms. Many compilers are available for executing programs written in C. A compiler compiles the source and generates an object file. A linker links all the object files together and create one executable file. It is highly portable. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. सबसे पहला इसमें क्या किया था हम लोग के, ये दो लाइब्रेरी फाइल है, इसका फुल फॉर्म भी बताया, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये कंसोल इनपुट आउटपुट. फिर आता है वॉइड मेन. यहाँ एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. जब भी हम लोग कंपाइल करते प्रोग्राम्स की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लोग को लिखना है, हम लोग का प्रोग्राम क्रिएट करना है, वो सब इसके अंदर आएगा. यहाँ एक प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं? हेलो वर्ड. और यहाँ गेट ch होल्ड्स आउटपुट स्क्रीन. तो ये कैसा वर्क करेगा? सबसे पहले यहाँ आएगा वॉइड मेन में प्रिंट एफ स्टोर है stdio के अंदर, गेट ch कोनियो के अंदर. तो दोनों की लाइब्रेरी फाइल इंक्लूडेड है, तो विदाउट एरर ये दो functions run होंगे. These components of the above structure are header file inclusion. The first and foremost component is the inclusion of the header file in a C program. A header file is a file with extension .h which contains C function declarations. In a C program, all lines that start with hash are preceded by preprocessor, which is a program invoked by the compiler. These .h files are called header files in C. These header files generally contain declaration of function. We need stdio for printf, जैसा आप भी बताया आपको, used in the program. Main method declaration. The next part of a C program is to declare main function in C. The execution typically begins with the first line of main. The syntax to declare the main function is
सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का कंपाइल स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट मेन से होगा। सिंटेक्स टू डिक्लेयर मेन मेथड ऐसा है, वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके अंदर बीच में आपको जो प्रोग्राम लिखना है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। Body of a function in C program refers to the operation that are performed in the function. It can be anything like manipulation, searching, sorting, printing, etc. रिटर्न स्टेटमेंट कभी आएगा हम लोग को अगर मैंने void की जगह कोई और कीवर्ड लाइक इन डाला हो तो हम लोग को नीचे get ch की जगह return 0 लिखना है। The last part in a C program is return statement. The return statement refers to the returning of the value from a function. This return statement and return value depend upon the return type of the function. For example, if the return type is void, then there will be no return statement. In any other case, there will be a return statement and the return value will be of the type to specify return type. How to execute the above program? In order to execute the above program, we need to have a compiler to compile and run our programs. तो इसको हम लोग ने रन करके भी देखे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देख लो, आप समझ लेंगे। फिर सेकेंड में मेरे पास है अभी आइडेंटिफायर से स्टार्ट करना है। Identifier refers to a name given to entities such as a variable, function, structure, etc. आइडेंटिफायर बेसिकली होते क्या है, जो हम लोग के कीवर्ड्स के बाद हम लोग जो बनाते हैं वेरिएबल, जो उसका नाम रहता है, इट इज अ नेम ओनली, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक, दे आर क्रिएटेड टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंटीजर मेरा कीवर्ड है, डेटा टाइप है और रोल नंबर मेरा आइडेंटिफायर है। Double also is a data type or a keyword you can say, or percentage is a identifier. Here roll number and percentage are identifiers. Also remember identifier names must be different from the keyword. इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ इंटीजर नहीं दे सकता हूँ, इंटीजर इज अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर शुड हैव ए यूनिक नेम, समझे। मतलब हियर अभी मैंने यहाँ रोल नंबर लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर दे सकता हूँ, पहला अल्फाबेट कैपिटल, ऐसा कुछ है नहीं कि एरर देगा, ठीक है। हियर रोल नंबर एंड परसेंटेज आर आइडेंटिफायर। ऑल्सो रिमेंबर आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम कीवर्ड। यू कैन नॉट यूज इंट एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज इंट इज एन कीवर्ड। जो कीवर्ड है वो आइडेंटिफायर नहीं यूज हो सकते, भले ही आप यहाँ अगर फ्लोट इंट लिखेंगे तो भी एरर देगा क्योंकि इंट इज अ कीवर्ड ओनली। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, यहाँ 4 रूल है, अगर ये आप फॉलो करें तो आपको एरर नहीं आएगा कभी। A valid identifier can have a letter both upper and lower case, digit and underscore. This is a valid, इसके बिना भी चलता है, अगर आपने सब लोअर केस दिए तो इट्स ओके, ऐसा कुछ एरर नहीं आएगा। The first letter of an identifier should be either a letter or a underscore. You cannot use keyword like int, while, etc. as identifier. जैसे इधर लिखा है, you cannot use int as identifier because int is a keyword. There is no rule on how long an identifier can be. However, you can run into problems in some compilers if the identifier is longer than 31 character. इसके लिए कोई है नहीं रूल कि कितना लॉन्ग होना चाहिए आइडेंटिफायर, बट कभी कभी you may run into problems in some compilers if the identifier is longer than 31 characters. वेरिएबल्स के अंदर हम लोग के पास क्या है, इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज अ कंटेनर ओनली। अ कंटेनर मतलब स्टोरेज एरिया, टू होल्ड क्या है, डेटा को होल्ड करता है। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। यूनिक नेम को क्या बोलते हैं, जो हम लोग अगर वेरिएबल को कुछ यूनिक नेम दे दे उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो जरा भी आपको डाउट नहीं रखना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा, और जिसको नाम इंडिकेट ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। जो यूनिक नेम देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। सी डेटा टाइप्स, इन अ सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन फॉर variables. This determines the type size of the data associated with variable. For example, integer myvar semicolon. Here myvar is a variable of integer. Integer is a data type and this is a variable. और ये जो लिखा है myvar, इसको एक हम लोग क्या बोलते हैं, उसको identifier only. The size of int is 4 bytes. तो इसका ये साइज का पूरा यहाँ बेसिक टाइप में आपको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले डेटा टाइप्स हम लोग को समझना है। डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स, दिस डिटरमिनाइज द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। अभी इसमें ये डेटा टाइप इंट है, मेरे को उसका टाइप मालूम है कि ओनली इंटीजर वैल्यूज, एंड उसका क्या है साइज 4 बाइट्स।
तो यहाँ मेरा हियर इज द टेबल कंटेनिंग कॉमनली यूज टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग फॉर क्विक एक्सेस। सबसे पहले इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, फिर डबल है, फिर शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। इंटीजर में एटलीस्ट 2 यूजुअली 4 जाता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम लोग को ये वैल्यू स्कैन में यूज करना है, वरना यही सेम वैल्यू प्रिंट में यूज करना है, लाइक प्रिंट करना है स्टेटमेंट को, तो मेरे को क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, %d। फिर कैरेक्टर के अंदर 1 है और इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर c है, %c, और इसका 4 है और %f। फ्लोट विद डेसिमल वैल्यूज लाइक इंटीजर वैल्यूज प्लस डेसिमल वैल्यूज इन अ वन नंबर, वरना आपको आउटपुट में डेसिमल वैल्यूज दिखना है। लाइक आप सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोई सैलरी डेसिमल वैल्यूज में आती है, तो इसके लिए आप इंटीजर यूज करेंगे तो नहीं आएगा डेसिमल, तो इसके लिए फ्लोट, वो आगे जाके आपको एक एक प्रोग्राम में समझ में आएगा। फिर आता है मेरे पास डबल। डबल के अंदर 8 है साइज और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, LF, और इसका शॉर्ट इनका 2 यूजुअल, ये उसको ये जाता नहीं है 4 तक, ठीक है, ये 2 ही है, और ये एटलीस्ट 4 है, यूजुअली 8 है। अगर मतलब आपको शॉर्ट इंट की जरूरत है तो HD कंपाइज शॉर्ट इंट यूज करो, लॉन्ग इंट की जरूरत है तो लॉन्ग LD मतलब लॉन्ग इंटीजर, और अगर आपको इंटीजर पे काम हो रहा है तो %d में आप कर सकते हैं। इधर एक ही टाइप डेटा टाइप है, बस खाली उसके डिफरेंट टाइप्स है। लाइक इंटीजर यूजुअली 4 तक जाता है, शॉर्ट इंट यूजुअली 2 है और लॉन्ग इंट यूजुअली 8 है। ड्राइव डेटा टाइप्स आते हैं हम लोग के पास। फिर ड्राइव डेटा टाइप्स दैट आर derived from fundamental data types are derived data types. For example, arrays, pointers, function types, structures, etc. ये सब हम लोग की क्या है, ड्राइव डेटा टाइप्स है। ये हर एक टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, तो भी आपको समझेगा। फिर भी डेटा टाइप्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर ड्राइव डेटा टाइप्स। इसको क्या आर कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप्स, मतलब डेटा टाइप्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड डेटा टाइप। जो भी ड्राइव्ड है फ्रॉम फंडामेंटल डेटाज दे आर कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल उसका क्या है, एरेज है, पॉइंटर है, फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा होता है, टाइप वेरिएबल नेम, और अगर ये सिंगल डिक्लेरेशन के लिए लाइक 1 वेरिएबल के लिए। मल्टीपल वेरिएबल के लिए डिक्लेयर करना है तो टाइप डेटा टाइप आपका वेरिएबल नेम कॉमा वेरिएबल नेम 2 कॉमा वेरिएबल नेम 3 4 5 मोर देन, उसका कोई साइज नहीं है, जितना आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इंटीजर इज द डेटा टाइप, विथ वेरिएबल का नाम है, ठीक है, और ये जो विथ लिखा है इसका मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है, कॉमा हाइट। हाइट मैंने यहाँ क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 दिया तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई, असाइंड हो गई टू 5। कैरेक्टर में लेटर इज द नेम ओनली लाइक आइडेंटिफायर नेम, एंड दिस इज द वैल्यू। वैल्यू क्या असाइन किया मैंने उसके लिए a, ठीक है, सर सेमीकोलन। आफ्टर द डिक्लेरेशंस, आपके इंटीजर के डिक्लेरेशन हो गया, आपने वेरिएबल नेम डाल दिया तो सेमीकोलन डालना कंपलसरी है, ठीक है। फिर फ्लोट में एज कॉमा एरिया, डबल में d। एक्चुअल इनिशियलाइजेशन विद इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एज 26.5 सेमीकोलन। एज किस में लिया हम लोग ने, फ्लोट में, तो यहां डाल सकते हैं हम लोग ऐसा, और विद हम लोग ने किस में लिए, इंटीजर में, तो हम लोग इसका 10 डाल सकते हैं, ठीक है। पर अगर मेरा जो एज था इंटीजर था 26.5 दिया, तो कंपाइल में अगर मेरे को एरर नहीं दिया तो मेरे को आउटपुट में 26.5 नहीं दिखेगा, इंटीजर में डेसिमल्स नहीं दिखते, ओनली फ्लोट में। वेरिएबल असाइनमेंट, ए वेरिएबल असाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू अ वेरिएबल, दिस कॉल्ड एज वेरिएबल असाइनमेंट। अभी वेरिएबल दिए उसको असाइन कर दिए वैल्यू, लाइक इंटीजर विद इक्वल टू 60, इंटीजर एज इक्वल टू 31, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट वेरिएबल असाइनमेंट। सी प्रोग्राम्स टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। सिंपल कैसा एक हम लोग सी प्रोग्राम करने वाले, जिसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल प्रिंट करना है, उसको मैंने पहले से ही असाइन करके रख दिया हो। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये 2 मेन लाइब्रेरी फाइल है, इसके बिना ये सब ये जो हम लोग के फंक्शंस है वो रन नहीं होंगे अगर ये मैं इंक्लूड नहीं किया। वॉइड मेन एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कंपाइलिंग इज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। इधर एक कमेंट लाइन है, अगर है बैकस्लैश एंड स्टार बैकस्लैश के बीच में जो भी लिखूंगा वो प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली कमेंट। लाइक अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स को या तो किसी को, तो मैं ऐसा एक कमेंट लिख सकता हूँ, ये कुछ इससे प्रोग्राम से लेना देना नहीं है।
यहां से मेरा एक्चुअल प्रोग्राम इंटीजर एज इक्वल टू 33, CLR SCR क्या करता है, क्लियर करता है स्क्रीन को, प्रिंट एफ प्रिंट फंक्शन आई एम % d years old /n नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ एज, तो मेरा क्या प्रिंट होगा 33 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ एज मैंने उसको यहाँ लिख दिया वैल्यू प्रिंट करने के लिए। गेट ch क्या करेगा, मेरा आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आई एम 33 years old। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैसा लिखेंगे, तो ये मेरा टर्बो सी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट टर्बो सी। ये मेरा प्रोग्राम आ गया, तो अभी मैं टाइपिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। फाइल में अंदर जाके न्यू आया, नो नेम, इधर इसको जूम करूंगा, इसका शॉर्टकट है F5, ऑल्ट एंटर से मैं इसको मिनिमाइज कर लूंगा, तो आपके सामने मैं प्रोग्राम को टाइप कर लूंगा। ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले एक लैब है हैश include stdio.h hash include conio.h void main, फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन CLR, वरना पहले डिक्लेयर कर दे दो इंटीजर एज, यहाँ असाइन कर दिया मैंने वैल्यू कितना है यहाँ 33 सेमीकोलन, यहाँ मैंने क्या लिखा CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए, अगर प्रीवियस प्रोग्राम है कोई तो वो उसको मिटा देगा। प्रिंट एफ आई एम % d years old, ठीक है, ./n, यहाँ कॉमा करके एज सेमीकोलन, यहाँ गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कंपाइल करूंगा, ऑल्ट F9 से कंपाइल, 0 एरर्स, रन करूंगा कंट्रोल F9 से, तो मेरा आउटपुट आ गया है। ठीक है, एकदम इजी था। इसमें अगर कुछ डाउट है, ये सबसे पहले मैंने 2 लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड किया, सेकेंड में वॉइड मेन किया, इंटीजर एज इक्वल टू 33 पहले से वैल्यू असाइन कर दिया, CLR SCR के अंदर मैंने क्या कर दिया, जो पहले का है पूरा मैंने उसको क्लियर कर दिया। अगर पहले कोई प्रोग्राम रन हुआ, प्रिंट एफ के अंदर मैंने जो भी मेरे को प्रिंट करना था आउटपुट में वो ले लिया, गेट ch के अंदर मेरा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड किया। ठीक है, ये था हम लोग का पहला प्रोग्राम और इजी था। आपको फाइल को सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव करके आपको उसका नाम दे देने का। C is a strongly typed language. This means that the variable type cannot be changed once it is declared. For example, integer number equal to 5, integer variable, number equal to 8 एरर आएगा और डबल नंबर एरर आएगा। तो क्या है इसका मतलब, टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब क्या है, वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज वन इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज चेक द साइज ऑफ वेरिएबल यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। अभी साइज ऑफ ऑपरेटर अभी सपोज मेरे को चेक करना है इंटीजर का कितना है, लॉन्ग इंट का कितना है, कैरेक्टर का कितना है, डबल का कितना है। ठीक है, यहाँ ABC ले लिया, ABCD, ठीक है, और stdio और conio मैंने इंक्लूड कर दिया स्टार्टिंग में ही। इंटीजर A, लॉन्ग इंट B, कैरेक्टर C, डबल D, CLR SCR क्लियर किया, प्रिंट F किया, साइज ऑफ शॉर्ट इक्वल टू %d बाइट्स /n, और साइज ऑफ के अंदर ब्रैकेट में ये एक इनबिल्ट फंक्शन है साइज ऑफ का, जिसमें हम लोग को क्या बताएंगे कि इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज कितनी है। तो हम लोग सेम ये प्रोग्राम करते हैं, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, यहीं से हम लोग को चेंजेस करना है खाली। ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इंटीजर मैंने क्या है, A है, ओके, लॉन्ग इंट B, फिर कैरेक्टर C, डबल D,
CLR SCR है, तो मैं अभी यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट एफ साइज ऑफ शॉर्ट इक्वल टू %d बाइट्स /n। नेक्स्ट लाइन के लिए कॉमा, यहाँ साइज ऑफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्या लेना है, ए वेरिएबल जो मेरा है जिसकी साइज देखना है। अभी सेम ये स्टेटमेंट को Alt E से मैं जाऊँगा, कॉपी कैसे करते, कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी किया और यहाँ Alt E पेस्ट किया। अभी यहाँ साइज ऑफ, यहाँ क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहला शॉर्ट था, सेकंड में लॉन्ग के लिए यहाँ भी सब सेम है, खाली यहाँ इसका परसेंटेज मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लॉन्ग का डी है, नहीं लॉन्ग का भी डी नहीं आता है, लॉन्ग का क्या था LD। और यहाँ साइज ऑफ क्या लूँगा मैं, बी। फिर यहाँ फिर से पेस्ट और यहाँ साइज ऑफ कैरेक्टर परसेंटेज क्या आता है, C कैरेक्टर पे पूरा, अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल देख सकते हो। और यहाँ Alt E पेस्ट और यहाँ जाके मेरे पास किसका है लास्ट में, डबल का, लॉन्ग डबल, साइज ऑफ यहाँ D। खाली एक लॉन्ग डबल का कितना है वो देख लेंगे अपन, लॉन्ग डबल का LF Alt C कंपाइल, 0 एरर, Alt R रन। गेट CH दिए, फाइल को उसको सेव कर लेते, देखते क्या एरर है। वेब प्रोग्राम में कुछ गलती होंगी। गेट CH साइज ऑफ सब बराबर लिखे हम लोग, साइज ऑफ ए, साइज वॉइड मैन गेट CH इंटीजर A, लॉन्ग इंटीजर B, कैरेक्टर C, डबल में D CLR। अच्छा इसका देखते, सब में D तो नहीं है। अच्छा ये क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे, क्योंकि साइज ऑफ का जो है ना वो आपको जैसा पहले ही बताया इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम लोग को यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्या कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो वो डायरेक्ट कर देता है। सबके लिए %d अप्लाई किए और उसने डायरेक्ट दे दिया, शॉर्ट का 2 बाइट्स, लॉन्ग का 4, कैरेक्टर का 1, लॉन्ग डबल का क्या है 8 बाइट्स। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठीक है, खाली ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं करना है। ठीक है, यही था मिस्टेक, और बस बाकी सब इजी था। फिर से अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हम लोग ने अगर बाकी जब भी प्रोग्राम बनाते टाइम तब भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ में उसको मालूम है एक कौन सा इंटीजर है तो उसका रिटर्न करेगा, बी का भी रिटर्न करेगा, सी का भी रिटर्न करेगा और डी का भी रिटर्न करेगा, और सब किस में ही रिटर्न करेंगे, इंटीजर वैल्यूज में 2, 1 एंड ऑल। तो उसके लिए हम लोग को %d ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था हम लोग का सेकेंड लेक्चर का पूरा उसमें कंटेंट। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है या तो कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।